Hello guys, today's lecture is on an cultivation of anaerobic microorganism, or we can say that anaerobic culture methods. Now, what are the anaerobic culture methods? Anaerobic microbes, isn't it? For cultivation of anaerobic microbes means those organisms who don't need oxygen for their growth, means oxygen is not required for their growth. For cultivation of such organism, what are the methods available that we are going to see? Okay, so let us see how anaerobic culture methods are achieved, or how anaerobic conditions are achieved. So I'll tell you, anaerobic conditions can be achieved by various methods. So what these methods are: cultivation in vacuum. So we can create a vacuum condition where absence of oxygen is there. So that is called as cultivation in vacuum. Then displacement of oxygen with other gases. So we can say that CO2, H2, N2. So these are the other gases which can be replaced by oxygen. So instead of oxygen, we can add these gases for the cultivation of microorganisms. So means we can say that oxygen is absent, but environmental condition in the test tube has been replaced with carbon dioxide, hydrogen gas, or nitrogen gas. Then chemical or biological method. There are certain chemicals which are responsible to create anaerobic conditions. So that chemical or biological methods also can be used for cultivation of anaerobic organism. Then displacement and combustion of oxygen. Whatever the oxygen which is there inside the flask, inside the test tube, it has been displaced other purpose, combustion of oxygen by chemical means or by any other means. And then by using reducing agents, there are certain reducing agents which are present. What these are, I'll tell you which are that reagents. So reducing agents are cysteine, then ascorbic acid, and then sodium thioglycolate. Isn't it? Sodium thioglycolate. So these are the agents. When you add in a amount of 0.1% in a test tube, then it will reduce total oxygen present in that test tube. Okay, so here most important thing is that by using reducing agent or by using cultivation in vacuum display, these are the different methods. And then last one is cultivation in anaerobic chamber, isn't it? Last method is cultivation in anaerobic chamber. So this method, okay, so this method is also used for cultivation of anaerobic organism. The following points highlight the top 4 types of culture media used in cultivation of anaerobic bacteria, isn't it? The following are the 4 most important types for used for cultivation of anaerobic organism. And which are that spatial anaerobic culture media, then anaerobic chamber method, anaerobic bag, and anaerobic jars, that is called as McIntosh jar. So spatial cultures are called as pre-reduced. Let us see the first method. Let us see the first method which has been used for cultivation of anaerobic microorganisms. And what is that? Okay, okay. So pre-reduced media method, in which what we have to do here. Say for example, consider this is the test tube. So and this is the media which is present in this tube, and this test tube can be heated with the help of burner.
heated with the help of burner, isn't it? और वी कैन से हीटेड इन द वाटर बाथ, वाटर बाथ में हम उसको हीट करेंगे. सो ऑल द मेथड अवेलेबल कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मीडियम इज सिंपलेस्ट मेथड. अभी हमें करना क्या है इसमें से सारा ऑक्सीजन एक्सक्लूड करना है मतलब निकाल देना है. और अगर हमें पानी में से या किसी लिक्विड मीडिया में से ऑक्सीजन बाहर निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा. तो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन लिक्विड कल्चर मीडियम इज बॉइल्ड बाय होल्डिंग ऑन बॉइलिंग वाटर. हमें उसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर के अंदर पकड़ना है, इजंट इट. मतलब अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा एक टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें हमारा लिक्विड मीडिया होगा, इसके ऊपर एक वाटर बाथ होगा, ट्राइपॉड स्टैंड होगा, ऐसा मेश वाला ट्राइपॉड स्टैंड होगा, और इसके नीचे बर्नर लगा होगा, ये बर्नर लगा होगा, इजंट इट. आई कैन चेंज द कलर ऑफ बर्नर ऑल्सो. So we can say that, so here we can say this is the burner and tripod stand के ऊपर अब इसके अंदर का पानी उबलेगा, this will be boiling, isn't it? So that method can be used. So during this preparation boiled by holding on boiling water for 10 minutes to drive off most of the dissolved oxygen. अब जो मीडिया होता है, मीडिया के पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. जैसे हमने देखा फिश, जैसे समंदर में फिश कैसे, मछली कैसे ऑक्सीजन लेती है, वो समंदर का पानी पीती है, पानी गिल से बाहर छोड़ती है और ऑक्सीजन अंदर जो पानी में डिजॉल्व होता है ना, वो ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर लेती है. तो हर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, हर पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व रहता है, इजंट इट. तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद लिक्विड मीडिया सून बिकम एरोबिक, दस रिड्यूसिंग एजेंट सिस्टीन 0.1%, एस्कॉर्बिक एसिड 0.1%, देन और सोडियम थायोग्लाइकोलेट 0.1% इज एडेड टू फर्दर लोअर द ऑक्सीजन कंटेंट. मतलब हमारा काम ये हीट करके छोड़ देना नहीं है, इसमें क्या करना है, हमें तीन में से एक, कोई भी एक कंपाउंड हमें ऐड करना है. तीन में से कौन सा एक कंपाउंड, सिस्टीन, ये अमीनो एसिड है, समझ लीजिए. सिस्टीन क्या है, ये अमीनो एसिड है. एस्कॉर्बिक एसिड, ए विटामिन, हम उसको सी बोलते हैं, या एस्कॉर्बिक एसिड भी हम ऑक्सीजन रिड्यूस करेगा इस टेस्ट ट्यूब में का, इजंट इट. तो ये टेस्ट ट्यूब में हमें आइदर किसी भी एक में से सिस्टीन, या तो सिस्टीन ऐड करना है, या तो एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करना है, या तो सोडियम थायोग्लाइकोलेट, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है 0.1%. तो वो ऐड करने के बाद क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन जो आएगा गलती से इधर, हमने समझो कॉटन लगा लिया और बाद में इधर ऑक्सीजन आ गया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थोड़ा बहुत, तो इसको भी रिड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये तीन केमिकल, तीन में से एक किसी की भी. देन ऑक्सीजन फ्री N2 इज बबल्ड थ्रू द मीडियम. एक टेस्ट ट्यूब में हमें उसमें ऑक्सीजन बबल करना है. करना क्या है हमें, सॉरी नाइट्रोजन, ये गैस कैन्युला रहेगा और गैस कैन्युला से हम अंदर कंटिन्यूसली नाइट्रोजन का फ्लशिंग करेंगे, कंटिन्यूसली नाइट्रोजन इससे अंदर भेजेंगे, इजंट इट. तो होगा क्या, इस लिक्विड का ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा. सो ऑक्सीजन फ्री N2 इज बबल्ड इन द मीडियम थ्रू द टू मेंटेन द एनारोबिक कंडीशन. द मीडियम इज डिस्पेंस्ड इनटू ट्यूब विच आर स्टॉप्ड टाइटली एंड स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग. और उसके बाद हमें उस ट्यूब को, उस लिक्विड मीडिया को करना क्या है, ऑटोक्लेव करना है. ऑटोक्लेव करना मतलब क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब को 121 डिग्री सेल्सियस को 15 LB प्रेशर पे 15 मिनट के लिए स्टरिलाइज करना है. क्या करना है, स्टरिलाइज करना है, इजंट इट. करना क्या है, हमें स्टरिलाइज करना है, इजंट इट. तो उसको ऑटोक्लेविंग बोलते हैं हम. सच ट्यूब्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी मंथ्स बिफोर बीइंग यूज्ड. और ऐसी टेस्ट ट्यूब्स हम बहुत सारे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं यूज करने से पहले. ड्यूरिंग इंक्यूबेशन और ड्यूरिंग इनोकुलेशन these tubes are continuously flushed with oxygen free CO2 by means of gas cannula and restopped and re-incubated. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे हमें इस ट्यूब में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है ड्यूरिंग इनोकुलेशन,
इधर देख लीजिए, ड्यूरिंग इनोकुलेशन ट्यूब्स आर कंटिन्यूसली फ्लश्ड विद ऑक्सीजन फ्री CO2। हमें किससे फ्लश करना है? CO2 से फ्लश करना है, इजंट इट। अभी यहाँ मेथड देख लीजिए कैसे करना है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल्चर मीडिया, ये है हमारा पहला वाला टेस्ट ट्यूब जिसको हमने बर्नर के ऊपर बॉयल किया। पहला स्टेप क्या किया था? बॉइलिंग, बराबर है कि नहीं? बॉइलिंग। उसके बाद हमने उसमें केमिकल्स डाले, सिस्टीन, सिस्टीन या ascorbic एसिड या थायोग्लाइकोलेट। इस तीनों में इसे कोई भी एक 0.1% हमने डाल दिया। जैसे मतलब कोई बचा हुआ फ्री ऑक्सीजन है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, पानी में अगर कोई बचा है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है? हमें इस टेस्ट ट्यूब में अब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है इस टेस्ट ट्यूब में। अब वो डालेंगे कैसा? जैसे डायरेक्ट ओपन कर दिया, ये निकाल दिया उसका स्टॉपर, तो पूरा ऑक्सीजन घुस जाएगा अंदर। तो इसको हमें बहुत मतलब लाइक वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर दैट ऑक्सीजन शुड नॉट एंटर इन दिस टेस्ट ट्यूब। सो हाउ इट हैज़ बीन डन, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है इसको। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है पहला वाला, ये जिसके ऊपर हमने ये स्टॉपर लगा दिया है, ये स्टॉपर, इजंट इट। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। हमको करना क्या है, जिस स्टॉपर इज लिफ्टेड इन अ टिल्टेड मैनर, मतलब ऐसे टेढ़ा करके निकालना है, और इमीडिएटली ये जो है ना कैन्यूला, गैस कैन्यूला CO2 का, इधर से इंसर्ट करना है इमीडिएटली। मतलब जैसे ही उधर से उठाना शुरू कर दिया, ये इसके माउथ के पास लेके आने का CO2 का, और ये कंटिन्यूसली इसके अंदर से CO2 चलता रहेगा। तो जैसे इसको बाजू को हटा दिया, स्टॉपर को बाजू को हटा दिया, इमीडिएटली हमें CO2 का कैनुला अंदर घुसा देना है, इजंट इट। उससे होगा क्या? व्हाट विल हैपन ओवर दिस प्लेस? सो दिस नाइट्रोजन व्हाट एवर वी हैव फील्ड, इट विल है कि नहीं? तो वो होगा इधर। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये हमारा अभी कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है, ऑक्सीजन फ्री कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है, अभी इसमें हमें ऑर्गेनिज्म डालना है। तो ऑर्गेनिज्म डालने के लिए हम लेते हैं पाश्चर पिपेट। ये देखो पाश्चर पिपेट, इजंट इट। तो पाश्चर पिपेट में हमें ऑर्गेनिज्म लेना है, वो बैक्टीरियल कल्चर है। बैक्टीरिया कैसा है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, समझ लीजिए एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो उसको हमें ग्रेजुएटेड होता है, ये ग्रेजुएटेड मतलब इसके ऊपर मार्किंग रहती है, हम वी कैन टेक 0.1 ml 0.2 ml ऐसा काउंट करके ले सकते हैं। वो ग्रेजुएटेड होता है पाश्चर पिपेट, ठीक है नहीं? ओके। तो उसके बाद जैसे ये लिक्विड कल्चर आ दिया, अभी यहाँ देख लीजिए सारे ऑर्गेनिज्म आ गए इधर टेस्ट ट्यूब केप्स में, ठीक है ना? डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म मिक्स हो गए। आगे वाली स्टेप करनी क्या है हमको? आगे वाली स्टेप क्या करनी है? क्या करनी है? उसके बाद हमें पाश्चर पिपेट निकाल देना है। वी हैव टू टेक आउट द पाश्चर पिपेट। तो इस पाश्चर पिपेट को हमें बाजू को निकालना है। अब बाजू को निकालेंगे, इस गैस कैनुला को आखिर में निकालेंगे। दिस शुड बी रिमूव्ड लास्ट, सबको सबसे पीछे बाद में निकालना है। तो निकालते वक्त भी कैसा करने का है? जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के सामने ठीक से आपको ये टेढ़ा करके ऐसा लाना है, और बाद में यहाँ से ये गैस कैनुला हटा देना है। और इमीडिएटली तुरंत जैसे गैस कैनुला, कांच का गैस कैनुला CO2 का बाजू को हटता है, तो इमीडिएटली स्टॉपर को हमें जगह, ये पूरा इन्वायरमेंट ये कहाँ किससे भर गया? ये भर गया कार्बन डाइऑक्साइड से, isn't it? That will be totally filled with the carbon dioxide. So we can say that inside the test tube, 100% anaerobic condition is maintained, where these anaerobic organisms can grow efficiently in anaerobic condition method. And this whole method is called as pre-reduced media method. This total method is called as pre-reduced
media method, isn't it? So this is the name, isn't it? So how this method is studied, that I have told you people. Okay, now next is cooked meat broth. What are the different types of medias which are used actually? उस मीडिया के नाम क्या है जो हमें बैक्टीरिया के खाद्य के स्वरूप में यूज करने हैं? खाद्य मतलब उसके लिए फूड बोल के यूज करना है। तो कुकड मीट ब्रॉथ बोल के एक मीडिया है, कुकड मीट ब्रॉथ है CMB। ओरिजिनल मीडियम इज नोन एज रॉबर्टसन बुलक हार्ट मीडियम। उस नाम का है ओरिजिनल नाम क्या है मीडिया का? रॉबर्टसन बुलक हार्ट मीडियम। उसके हार्ट से तैयार किया है, बुलक के हार्ट से। हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरियोलॉजी एंड थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ एंड इट्स मॉडिफिकेशन आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो CMB जो है कुकड मीट ब्रॉथ और थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ बोलते हैं हम उसको, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये दोनों बहुत यूजफुल है किसके लिए? एनारोबिक। Then CMB is suitable for growing anaerobic bacteria in air। हवा में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए बहुत सारा सुटेबल होता है। आप बोल सकते हैं सर हवा में कैसे? हवा में तो ऑक्सीजन रहता है, लेकिन हवा में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हवा में रहते हैं, isn't it? एयर में रहते हैं, देन सॉइल में रहते हैं। There are many places where these anaerobic organisms are present, isn't it? For CMB is used for preservation of their stock cultures। मतलब CMB मीडिया जो है कुकड मीट ब्रॉथ, वो हम स्टॉक कल्चर बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म का स्टॉक कल्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउएवर सम ऑफ अदर मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर रिकवरिंग एनारोब्स एंड ब्रुसेला ब्लड अगार, बैक्टीरियोइड बाइल एस्किलिन अगार, फिनाइल इथेनॉल अगार, kanamycin blood agar। These are the some other medias which can be used instead of cooked meat broth for the cultivation of microorganism, or we can say that some medias are suitable for a particular type of organisms। Say for example, this cooked meat broth can be used for 2 or 3 different type of organism, but whereas same cooked meat broth is not suitable for other organism। So bacterioids organism can be cultivated in bile ascilin agar, brucella type of bacteria are cultivated in blood agar। So हर एक का अलग अलग पहचान है। ये एक मीडिया दूसरे ऑर्गेनिज्म को उतना सुटेबली ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज डिफरेंट है, जीनस डिफरेंट है, तो उसके खाने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग अगर जैसे एक स्टेट में एक टाइप का खाना चलता है, दूसरे स्टेट में दूसरे टाइप का खाना चलता है, तो अलग होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट मेथड, दैट इज pre-reduced media method। Now let us come to the second method, that is anaerobic chamber method। Now anaerobic chamber method is the method where we can say that a specifically designed chamber is constructed। एक मशीन होती है, उसको हम एनारोबिक चेंबर बोलते हैं। एनारोबिक चेंबर इज आइडियल एनारोबिक इनोकुलेशन सिस्टम। मतलब हमें ऑर्गेनिज्म एक टेस्ट ट्यूब में से दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है, और उसमें ऑक्सीजन अगर बिल्कुल नहीं चलेगा तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट बाहर ज़्यादा आसानी से नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमने ये मशीन बनवाया है, एक मशीन बनवाया, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक चेंबर, इजंट इट? तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है। फिर आप कैसा भी काम करो, टोटल उस मशीन में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आएगा। इट रेफर्स टू ए प्लास्टिक एनारोबिक ग्लो बॉक्स दैट कंटेन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस, carbon dioxide gas and nitrogen gas। glow pods or rubber glows are used by the operator to perform manipulations within the chamber। मतलब जो ग्लो के हैंड होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों हैंड है, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों हैंड है, देखो इसमें हम हमारे हाथ डाल सकते हैं। ये इधर भी देख लीजिए, ये वाला एक पैर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इसमें लेफ्ट हैंड डालना है, इसमें राइट हैंड डालना है। अंदर इस मशीन के अंदर पूरा इस जो सिस्टम होता है, वो मशीन के अंदर का पूरा गैसेस, कौन से गैसेस से भरा रहता है?
हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस, इजंट इट। और वो ग्लो के पोर्ट जो होते हैं, ग्लोव्स के पोर्ट, तो ग्लोव्स के पोर्ट में से हमें हाथ अंदर डालना है और सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं, इजंट इट। देयर इज एन एयरलॉक विथ इनर एंड भी समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम उसको। उसके बाद कल्चर मीडियाज आर प्लेस्ड विद इन एयरलॉक with the inner door. Air chamber is removed by the vacuum connection and replaced with N2 through the outer doors. अब ये एयरलॉक काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे ये इधर है एयरलॉक, आप थोड़ा मैं इसको झूम कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो इधर आ गया हमारा एयरलॉक। अब इसमें करते क्या है, जैसे पहले एयरलॉक समझने के लिए थोड़ा मैं क्या करता हूँ, मैं उसको झूम कर देता हूँ। ओके, आप देख लीजिए। अब एयरलॉक है, इसमें ये हो गया आउटर डोर, ये हो गया आउटर डोर, और ये हो गया इनर डोर, ये हो गया इनर डोर, इजंट इट। अब करते क्या है, ये डॉक ऐसे, ये दिस डोर इज हैविंग मैकेनिज्म लाइक दैट ओनली वन डोर कैन बी ओपनड एट ए टाइम। हम एक ही डोर एट ए टाइम ओपन कर सकते हैं, एक ही डोर। अभी इसमें हम इस मशीन के अंदर जो भी कुछ टेस्ट ट्यूब वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कैसे करने हैं हमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों डोर पहले क्लोज रहेंगे, दिस बोथ द डोर्स विल बी क्लोज्ड। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, कंसीडर करके चलिए, ये डोर हमने ओपन कर दिया बाहर से, ऐसे यहाँ से ऐसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने हमारे जो प्री रिड्यूस्ड मीडियम मेथड में जो टेस्ट ट्यूब बनाए थे, isn't it? I have closed this door. Yes. अब मेरे टेस्ट ट्यूब अंदर चले गए। I have sent my test tube out inside this room. अब करना क्या है, then this door is closed. This door is closed. Now what I have to do here, we have to start the vacuum. So whatever the oxygen which is there, it has been removed by vacuum pump. इट हैज़ बिन रिमूव्ड बाय द वैक्यूम पंप। मतलब जैसे मैं वैक्यूम से क्या कर लूँगा, बाहर सारी ऑक्सीजन, मतलब मैंने दरवाज़ा तो ऐसे ही ओपन किया था ना, ऐसे, तो दरवाजे के साथ अंदर ऑक्सीजन तो चला जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब के साथ अंदर का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को निकाले कैसे, दरवाज़ा टोटल बंद कर दो, रबर टाइट कर है, रबर टाइट रहता है, टेस्ट ट्यूब भी रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा, अंदर का दरवाज़ा पूरा बंद है। हमने यहाँ वैक्यूम मशीन चालू कर दिया, मैं पूरा बता देता हूँ। देखो यहाँ ये वैक्यूम मशीन के साथ हमने ऑक्सीजन पूरा अंदर से बाहर खींच लिया, ये हो गई पहली चीज़। अब यहाँ क्या है, निर्वात पोकड़ी बन गई। निर्वात मतलब इसमें कोई भी गैस नहीं है, बट हमें अंदर से ओपन करना, ऐसे भी चलेगा, लेकिन इससे अच्छा क्या है, हम इसको N2 से भर दें। तो जैसे निर्वात पोकड़ी बना देता, मतलब हमने उसका पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया था, हम उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, N2 इनपुट, मतलब N2 आ गया इधर, हमने उसकी जगह ऑक्सीजन फ्लश कर दिया। अब ऑक्सीजन फ्लश करने के बाद हम अंदर का दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब हमने अंदर ले लिए। यहाँ से हाथ डाल दीजिए, हाथ यहाँ तक घुमा लीजिए, दरवाज़ा ओपन कर लीजिए अंदर से, और उसका अंदर का टेस्ट ट्यूब निकाल के यहाँ ले लीजिए। देता हूँ H2N2 सॉरी H2 सारा एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, H2N2 और CO2, तीनों में से कोई भी गैस रहेगा अंदर। अगर समझो गलती से इधर अंदर ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहता है सर्कुलेटर,
सर्कुलेटर मतलब यहाँ फैन लगा रहता है, फैन, इजंट इट। और ये फैन का कनेक्शन जाके डायरेक्ट एक मेश रहता है, ऐसा एक बॉक्स रहता है, मेशी बॉक्स, मेशी मतलब जाली का जैसा बॉक्स रहता है, उसमें पैलेट्स ऑफ पैलाडियम क्रिस्टल, पैलाडियम नाम का धातु है जो वो भरा रहता है। तो उसका काम क्या है, अब मैंने बताया अंदर क्या क्या भरा है, H2 गैस भरा है, CO2 भरा है और N2 भरा है। अब ये H2 तो रिएक्टिव है, अब जैसे गलती से ऑक्सीजन आ गया तो H2 का रूपांतर कन्वर्जन किस में होगा, H2O में होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम कैटालिस्ट। पैलाडियम कैटालिस्ट के साथ अगर हाइड्रोजन गैस हमने अंदर भरा है और गलती से ऑक्सीजन आ गया तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया 2H2O, ऐसा हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है इसमें। बाद में क्या है, आपको क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब का जो करना है काम आपका इधर का, जैसे एक टेस्ट ट्यूब में से ऑर्गेनिज्म दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देने हैं, तो आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, आप आपका काम कर दीजिए। उसमें अंदर ऑक्सीजन तो है नहीं, पूरा एनारोबिक कंडीशन मेंटेन है। तो बाद में इस इनक्यूबेटर के दरवाजे ओपन करने हैं, यहाँ से 5 दिन रखने, तो उसके अंदर ही रख दीजिए। इस इनक्यूबेटर को कंटिन्यूसली CO2 का कनेक्शन दिया हुआ रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ना कि ऑक्सीजन, इजंट इट। एंड इधर देख लीजिए, ये सारे मैंने बता दिया कि मेन चेंबर हाउ इट हैज़ बीन फील्ड। ये देखो इधर मेन चेंबर, एक मिनट में आपको थोड़ा ऊपर लेता हूँ तो बताने के लिए आसानी होगी। मेन चेंबर इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये तीनों गैस अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इजंट इट। तो इस तरीके से ये फिगर जो है ना, तो वो 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछी जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म 3-4 मार्क के लिए भी पूछी गई है, इजंट इट। तो ये हो गया मशीन कैसा दिखता है और मशीन का कार्य कैसा रहता है, इजंट इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मतलब उसका थोड़ा थियोरेटिकल हम समझ लेंगे और बाद में आगे चलेंगे। ये सर्कुलेटर फिटेड रहेगा, अंदर सर्कुलेटर रहेगा। सर्कुलेटर का काम क्या है, गैस एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली मूवमेंट में रखना है। पैलाडियम कैटल क्रिस्टल के साथ रेसिडुअल ऑक्सीजन अगर आ जाता है तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और उसका कन्वर्जन वाटर के साथ हो जाएगा। When a culture medium become completely anaerobic, they are inoculated with the bacterial culture and placed in incubator fitted within the chamber. incubator में रखना है काम होने के बाद, मतलब ऑर्गेनिज्म हमें दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करना था, हमने कर दिया इसके अंदर, और ये टेस्ट ट्यूब इधर अंदर ही रख दिए, isn't it? Then functions of CO2 present in the chamber is that required for by many anaerobic bacteria for the best growth. अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्यों भरना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भर के देना है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड के कंडीशन पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उधर तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि ये देख लीजिए, इधर इनक्यूबेटर है ना, ये इनक्यूबेटर दिख रहा है इधर क्यूबिकल, तो इसके अंदर पूरा अंदर ऑर्गेनिज्म को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनारोबिक चेंबर इज शोइंग इन इट्स वेरियस पार्ट्स इन द गिवन फिगर। मैंने तो पार्ट्स तो सारे बता दिए, अभी ये देख लो दूसरा टाइप का है, ये इधर का बॉक्स है, कौन सा वाला बॉक्स है, ये वैक्यूम वाला। जैसे हमने क्या करते, एक दरवाज़ा ओपन करके अंदर का बाहर का मटेरियल अंदर रखेंगे, फ्रंट वाला दरवाज़ा है, बाद में इधर का वैक्यूम क्रिएट करके पूरा ऑक्सीजन निकाल लेंगे, इसको N2 से अंदर N2 डाल देंगे, नाइट्रोजन गैस, अंदर से दरवाज़ा ओपन कर दिया और बाद में आपका अंदर पूरा जैसे काम करना है कर सकते हैं, इजंट इट। उसके बाद तीसरा वाला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं मैकलिंटॉश फ्लाइड्स जार। ये टाइटल याद रखना, हमें टाइटल हमेशा याद रखना, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में ऐसी नाम से कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, मैकलिंटॉश फ्लाइड्स एनारोबिक जार, मैकलिंटॉश फ्लाइड्स एनारोबिक जार। अभी इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास का ये है, क्या बोलते हैं हम उसको, एक मिनट थोड़ा नीचे लेता हूँ। ये एक ग्लास का बना हुआ है और इसके अंदर का अरेंजमेंट हमको उन्होंने दिखा दिया है। इसके अंदर वी कैन प्लेस द पेट्री डिश कल्चर प्लेट्स इनसाइड दिस फ्लास्क, सी के यू कैन दिस ब्लैक कलर्ड पेट्री डिशेस आर केप्ट। देन यू कैन से एनारोबिक इंडिकेटर स्ट्रिप इज ऑल्सो देयर। इंडिकेटर स्ट्रिप का काम क्या रहेगा, ये जो स्ट्रिप है
इधर इधर ये वाली इंडिकेटर स्ट्रिप है इधर, इजंट इट। इंडिकेटर स्ट्रिप का काम क्या रहेगा, जैसे इसमें पूरा कंडीशन CO2H2 वाला है, CO2H2 वाला, इसमें भी पैलाडियम क्रिस्टल्स रहते हैं, देखो पैलाडियम पेलेट्स। तो पैलाडियम पेलेट का काम क्या है, जैसे कोई गलती से ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का कन्वर्जन वाटर में करना है। इधर रिएक्शन भी दिया है कि नहीं, इधर देख लीजिए, ऑक्सीजन अगर आता है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिलन करना और उसके ऊपर कैटलिस्ट बोल के खुद काम करता है और वाटर में कन्वर्जन कर देता है। प्लस ये जो स्ट्रिप है, गैस पैक बोलते हैं इसको, ये जो पाउच रहती है वो हमेशा पाउच में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व होते रहता है, मतलब वो जनरेट करता रहता है, इजंट इट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो व्हेन anaerobic jar or gas pack anaerobic system, we can see that when an oxygen free or anaerobic atmosphere is required for obtaining surface growth of anaerobic bacteria, just this is the best method। मतलब हमें लिक्विड टेस्ट ट्यूब में नहीं करना है काम, अभी हमें सरफेस पे ग्रोथ चाहिए बैक्टीरिया का, तो मेरे को टेस्ट ट्यूब पेट्री डिश लगेंगे। अगर पेट्री डिश में हमने मीडिया भर दिया और उसमें हमने मीडिया डाल दिया और मेरे को ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है तो सरफेस पे चाहिए, किस पे चाहिए, सरफेस पे चाहिए। मतलब मेरे को सॉलिड कंडीशन में ग्रो करना है ऑर्गेनिज्म को, तो सॉलिड कंडीशन में ग्रो करने का एक ही तरीका है, उसको हम टेस्ट ट्यूब में यूज़ करना पड़ेगा, बाकी कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते। तो टेस्ट ट्यूब के लिए ये मैक्लेंटॉस जार जो है, एनारोबिक जार, मैक्लेंटॉस फ्लाइड, ये पेट्री डिश के लिए बहुत बेहतर है, पेट्री डिशेस के लिए बहुत बेहतर है, लिक्विड के लिए नहीं, लिक्विड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। द मोस्ट रिलायबल वाइडली एनारोबिक जार इज जार इज द मैक्लेंटॉस फ्लाइड एनारोबिक जार। इट इज सिलेंड्रिकल वेसल मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल एंड मेटल लीड। उसके बाद वो उसका मेटल का लीड भी रहता है, ये देख लीजिए ऊपर का मेटल के लीड में इधर कॉर्कस्क्रू रहेगा उसको टाइट करने के लिए, क्लैंप, और ये दोनों का काम है उसको टाइट, एयर टाइट कंडीशन करना। अब ये देख लीजिए गैस्केट रिंग है, इधर काला डॉट दिखता है ना, ये वाला और ये वाला इधर काले डॉट, तो गैस के हमारे प्रेशर कुकर में जो रिंग रहता है ना, ओ रिंग, तो वो दिखा रहा है इधर, ये वाला, ये दो जगह डॉट जो दिख रहे इसको, ये वाला ये रबर गैस्केट सील, तो यहाँ 2 डॉट दिख रहे हैं लेकिन ये सर्कुलर होगा, पूरे इसमें बैठा होगा जैसे हमारे प्रेशर कुकर में रहता है। बाद में गैस्केट ट्यूब है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर फ्लश कर सकते हैं। आउटलेट ट्यूब है, उसमें अगर अंदर फ्लश किया जाए तो गैस अंदर के गैसेस बाहर भी आने चाहिए, इसके लिए आउटलेट ट्यूब रहेगा। उसके बाद लीड, उसके बाद एक पैलाडियम क्रिस्टल्स, गैस पैक, ये तो सारी चीज़ें अंदर की है। कल्चर प्लेट्स है, एनारोबिक, इंडिकेटर स्ट्रिप है। इंडिकेटर स्ट्रिप का काम मैंने बता नहीं दिया, जैसे गलती से ऑक्सीजन आता है तो ये इंडिकेटर स्ट्रिप है ना, जैसे समझो इसका येलो कलर है इंडिकेटर, जैसे ऑक्सीजन अंदर आ गया येलो का कन्वर्जन हो गया रेड में, मतलब रेड इंडिकेशन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट। इंडिकेटर स्ट्रिप का काम ही यही है, मतलब जैसे गलती से ऑक्सीजन आया तो हमें वार्न करना है, हमें वार्न करना है कि चलो ऑक्सीजन अंदर की, हम इमीडिएटली उसके अंदर के गैस पैक रिमूव कर देंगे, इंडिकेटर स्ट्रिप रिमूव कर देंगे और फ्रेश हमें इस मैक्लेंटॉस जार को आइडियल कंडीशन चीज़ों से भर देना है। यू कैन देख लीजिए यहाँ, ये देखो अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड के लिए देख, ये ऐसा रहता है मशीन, इजंट इट। ये यहाँ पैलेडियम क्रिस्टल्स हो गए, ये गैस पैक जनरेटर हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर पड़ती है, ये इंडिकेटर स्ट्रिप हो गया एनारोबिक इंडिकेटर मिथिलीन ब्लू का, जैसे वो कंडीशन में कलर चेंज करेगा। ये पेट्री डिश रखे अंदर के, ये जो ऐसे ग्लास का पोर्शनिंग दिया है उन्होंने ऐसा। देन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोहाइड्राइड, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करेगा, सोडियम बाइहाइड्रेट बोरोहाइड्रेट जो हाइड्रोजन तैयार करेगा। लीड विथ रिंग, अभी ये देखो इधर गैस की रिंग जो है ना, वो गैसकेट रिंग इधर है, ये इधर और इधर क्लैम्प्स एंड पैलाडियम कैटलिस्ट, ये देखो इधर पैलाडियम कैटलिस्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम मैक्लेंटॉस फ्लाइड जार बोलते हैं। हम ये भी फिगर आप निकाल सकते हैं, इसकी भी फिगर पूछी गई है दोस्तों, इसकी भी फिगर बहुत बार पूछी गई है। ये भी, ये डाल दो, ये निकाल दो या ये निकाल दो, मैक्लेंटॉस जार को आपको दोनों में से एक फिगर तो निकालनी पड़ेगी। तो ये 2-3 मार्क के लिए पूछी गई है आपके बहुत सारे इसमें एग्जाम्स में, ओके।
द लीड possess tubes with taps, one acting as a gas inlet and other is gas outlet. उसमें जो ऊपर रहता है गैस इनलेट और गैस आउटलेट, मैंने ये तो बता दिया था आपको। यहाँ ये देख लीजिए, इधर इनलेट और आउटलेट, इधर गैस इनलेट, इससे हम गैस अंदर भेज सकते हैं और ये गैस आउटलेट होगा इधर, isn't it? On its under पोर्स रहेंगे सैचेट ऑफ पैलाडियम पेलेट्स एक्ट एज ए रूम टेम्परेचर कैटलिस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर, इजंट इट? जैसे जाली में उसको बंद कर दिया है, ये देखो इधर, ये इधर जाली में, तो इसमें इसके अंदर आराम से हाइड्रोजन गैस भी जा सकता है, हाइड्रोजन गैस भी जा सकता है और ऑक्सीजन गैस भी जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होकर वाटर में कन्वर्जन होगा। ओके, पैलाडियम पेलेट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट बोल के काम करेंगे। एंड लॉन्ग सेट केप्ट इन ड्राई इनोकुलेशन, इनोकुलेटेड कल्चर प्लेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द जार एंड लीड क्लैम्प्स इज टाइटन्ड, उसको हम टाइट कर सकते हैं। द आउटलेट, उसके अभी कोई टेंशन नहीं, उसके अंदर अगर चुप गलती से ऑक्सीजन भी रह गया तो उसका ख्याल वो पैलाडियम कैटलिस्ट और हाइड्रोजन ले लेंगे, उसको कन्वर्जन वाटर में कर देंगे। आउटलेट ट्यूब इज कनेक्टेड विथ वैक्यूम पंप एंड एयर इनसाइड इवैक्यूएटेड, उसके अंदर का एयर हम निकाल सकते हैं। आउटलेट टैप इज देन क्लोज्ड, उसका आउटलेट टैप बंद करना है और उसको इनलेट हाइड्रोजन सप्लाई से कर देना है, उसके अंदर हाइड्रोजन सप्लाई गैस डाल देना है। पहले ऑक्सीजन निकाल के लेना है, बाद में हाइड्रोजन डालना है। हाइड्रोजन इज ड्रॉन रैपिडली एज सुन एज इट दिस inrush of hydrogen gas has reduced caused seized in inlet tube is also closed, मतलब हाइड्रोजन गैस अगर अंदर सफिशिएंट हो गया तो बाद में इनलेट का भी क्लोज कर दीजिए। आफ्टर अबाउट 5 मिनट इनलेट ट्यूब इज फर्दर ओपनड, उसके बाद हम इनलेट ट्यूब का ओपन कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे लगेगा वो अंदर खींच लेगा, ओपन करके रखा तो। देयर ऑकर्स एन इमीडिएट inrush of hydrogen since catalyst create reduced pressure within the jar due to conversion of hydrogen and leftover oxygen into water, मतलब गलती से जो ऑक्सीजन अंदर रह गया है, गलती से जो ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर मतलब क्या, गलती से अंदर ऑक्सीजन रह गया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होके H2O में कन्वर्जन हो जाता है और इसलिए हमने इनलेट देयर इज इनरश ऑफ हाइड्रोजन, इनरश मतलब हाइड्रोजन अंदर दौड़ेगा। इट मीन्स कैटलिस्ट इज इन एक्टिव एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, मतलब इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट हमारा काम कर रहा है। कौन सा? पैलाडियम कैटलिस्ट जो है ना वो। द जार लेफ्ट कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन सप्लाई फॉर अबाउट 5 मिनट, 5 मिनट तक चालू रखना है, उसके बाद बंद किया तो भी चलेगा। कैटलिस्ट कंटिन्यूज अंटिल ऑक्सीजन इन द जार इज यूज्ड अप, कैटलिस्ट पैलाडियम कैटलिस्ट है ना, तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक काम करते रहेगा। द गैस पैक इज नाउ मेथड ऑफ चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग एनारोबिक जार, गैस पैक तो बहुत यूजफुल है। गैस पैक इज कमर्शियली अवेलेबल डिस्पोजेबल एनवलप कंटेनिंग केमिकल्स जनरेट हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड, उसके अंदर अगर पानी हम ऐड करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। आफ्टर द इनोकुलेटेड प्लेट्स आर केप्ट इन द जार, गैस पैक एनवलप विथ वाटर एडेड इज प्लेस्ड इनसाइड द लीड स्क्रूड टाइट, मतलब उस गैस पैक को हमें ब्रेक करना है, इसको ये इसमें और इसमें पानी डालना है, isn't it? इसको क्या करना है, ब्रेक करके इसके अंदर पहले तोड़ना है, उसके अंदर वाटर डालना है H2O, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते चलेगा। ओके, देन गैस पैक इज कमर्शियली अवेलेबल इन डिस्पोजेबल एनवलप फॉर्मेट containing chemicals that generate hydrogen and carbon dioxide gas. After inoculated plates kept in gas pack envelope, water is added, water का ऐड करना है। Then hydrogen and carbon dioxide is liberated in presence of cold catalyst and envelope permits combination of hydrogen and oxygen produced in anaerobic conversion, मतलब हाइड्रोजन का गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन करेगा, उसमें से कुछ हाइड्रोजन यूटिलाइज भी होगा। आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस गैस पैक सिस्टम इज डिस्पोजेबल गैस पैक जनरेटर एनवलप। इन द जार पर्पज ऑफ मिथिलीन ब्लू इज यूज्ड, मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर जो पाउच है ना, इंडिकेटर का स्ट्रिप, वो व्हेन प्लेस्ड इन एनारोबिक एनवायरनमेंट इट रिड्यूस्ड फॉर्म कलर्ड ऑक्सीडाइज्ड टू कलरलेस when it is placed in anaerobic environment it is reduced form is colored oxide form a colorless reduced leuco compound. Removal of culture plates from the jar for microscopic examination
a method major disadvantage of anaerobic jar system, isn't it? जैसे जैसे हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द मतलब एग्जामिनेशन के लिए, जैसे मेरे को प्लेट को देखना है, अभी प्लेट में ग्रोथ कैसा हुआ है मेरे को देखना है, तो उस वक्त मेरे मेरे प्लेट को, मेरे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लग सकता है। तो ये इसका पूरा बहुत सारा डिसएडवांटेज, हम कि मैं प्लेट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर का लीड ओपन किया तो अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगा, अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगा तो मेरा एनारोबिक कंडीशन मेंटेन नहीं होगा। मतलब जैसे मेरे को प्लेट को देखना है फ्लास्क के बाहर निकाल के, तब जाके मेरे को डिसएडवांटेज है, तब तक इस फ्लास्क का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। दिस कोर्स रिजल्ट इन एक्सपोजर ऑफ कॉलोनीज टू द ऑक्सीजन। अभी जैसे बाहर निकालूंगा मैं टेस्ट ट्यूब देखने के लिए तो ऑक्सीजन को एक्सपोज हो जाएंगी, एंड विच इज़ स्पेशली हैजार्डस। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं चलता है इन देयर फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ ग्रोथ। पहले 48 घंटे में उनको ऑक्सीजन नहीं लगता है, अगर लगता है तो पॉइजनस हो जाता है। दिस रीजन सुटेबल ऑक्सीजन फ्री होल्डिंग सिस्टम ऑलवेज शुड बी यूज्ड इन कंजक्शन ऑफ एनारोबिक जार। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि एक पाउच डेवलप करना है, और उस पाउच में हमें पेट्री डिश रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। अभी ये देख लीजिए, मैंने जो बताया कि फ्लास्क एनारोबिक जार के साथ, मैक्लिंटॉश जार के साथ, ये जो मैक्लिंटॉश जार है हमारा, उसके साथ इसका भी यूज करना रहेगा, उसको बोलते हैं एनारोबिक पाउचेस और बैग्स। Anaerobic bags are pouches make convenient container only when few samples are being incubated anaerobically। जैसे जार में मैंने पेट्री डिश इंक्यूबेट कर दिए, isn't it? They are available commercially, हम परचेस कर सकते हैं। बैग पाउचेस हैव ऑक्सीजन रिमूवल सिस्टम, उसमें से वो बैग का सिस्टम ही ऐसा है कि ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। बैग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, एंड कैल्शियम कार्बोनेट अंदर CO2 रिच एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, उसमें उस बैग में CO2 रिच एनवायरनमेंट तैयार करेगा। 1 or 2 इनोकुलेटेड प्लेट्स इनटू बैग, 1 और 2 टेस्ट ट्यूब हम पेट्री डिश हम उस बैग में रख सकते हैं, isn't it? Plates can be examined for growth of removing plates from the bag, thus without exposing to the colonies to the oxygen। मतलब इसके अंदर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहेगा और उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। बट as with aerobic jar, plate must be removed from the bags in order to work with the colonies at the बेंच। मतलब प्लेट्स को हमें रिमूव करते वक्त ऐसे ख्याल रखना है कि इमीडिएटली वो ओपन होने के बाद तुरंत वो पाउच में या बैग में चले जाए। दीज बैग्स आर आल्सो यूजफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोप्सी स्पेसिमेन फॉर एनारोबिक कल्चर्स। जैसे टिश्यू बायोप्सी रहता है, उसके अंदर अगर जो कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह रहता है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये यूज़फुल रहता है। देख लीजिए यहाँ इस बैग में है अभी एक गैस जनरेटर है, ऑक्सीजन इम्परमेबल फुल पाउच, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है। मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग डेसिकेंट, मॉइस्चर के लिए भी डेसिकेंट रखा है। और इधर देख लीजिए ऊपर इजी टू ओपन प्री स्क्रॉच्ड नॉच, ये देख लीजिए इधर ओपन करने के लिए। फ्लश विथ ऑक्सीजन फ्री गैस इनसाइड द बैग, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा अंदर, इजंट इट? तो यहाँ से ये पूरा जो ऑक्सीजन रहता है तो उसको सोख ले, ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, isn't it? So this is all about cultivation of anaerobic organism. I hope that this all concepts are clear to you all, and you have understood all concepts. Okay, thank you.